بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اپنے کورس عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا ہم سبق نمبر 82 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق ملک شام کے حصہ چہارم پر مشتمل ہوگا۔ سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق ملک شام کے حصہ سوم پر مشتمل تھا اور پچھلے سبق کے اندر ہم نے ملک شام کی مختصر تاریخ کا جائزہ لیا۔ آج کے سبق کی ابحاث جان لیتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا 2 پوائنٹس پر مشتمل ہوگا۔ پہلے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کے سلسلہ حالات و واقعات پڑھیں گے اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کے طرز حکومت کے بارے میں بات کریں گے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، یعنی سلسلہ حالات و واقعات کی جانب۔ شام میں مصر کے صدر جمال عبد الناصر کے حامی موجود تھے جو کہ اختیارات کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ بعض پارٹی جس کی قیادت عبدالحمید سراج کے ہاتھ میں تھی، اس نے فوج کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ سیاسی خلفشار کے پیش نظر مصر اور شام کے وفاق کی تجویز سامنے آئی۔ سراج کی سربراہی میں ناصر نواز ٹولے نے دباؤ ڈال کر صدر شکری کو مصر کے ساتھ فیڈریشن قائم کرنے پر مجبور کیا۔ 1956 کے فوجی اور 1957 کے اقتصادی معاہدے نے اس وفاق کی راہ ہموار کی۔ 1957 کے آخر میں اس منصوبے پر باقاعدہ بات چیت شروع ہوئی۔ 12 ستمبر 1957 کو شام کے کمانڈر ان چیف جنرل بزری اور کرنل عبدالحمید سراج قاہرہ گئے، جہاں انہوں نے صدر ناصر اور مصری فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل عبدالحکیم عامر کے ساتھ دونوں ملکوں کی فوجوں کے ادغام کے امکانات کا جائزہ لیا۔ جنوری 1958 میں دونوں ملکوں کے اتحاد کا اعلان ہو گیا۔ چنانچہ 1 فروری 1958 کو دونوں ملکوں کے وفاق سے جو مملکت وجود میں آئی، اس کا نام متحدہ عرب جمہوریہ رکھا گیا۔ جمال عبد الناصر نئی جمہوریہ کے صدر اور شامی لیڈر اکرم الحوارنی نائب صدر بنے۔ ایک قومی اسمبلی اور متحدہ فوج بھی ساتھ ہی تشکیل دے دی گئی۔ اس موقع پر مصر اور شام کے طول و عرض میں بڑی خوشیاں منائی گئیں۔ 21 فروری کو عوام نے استصواب رائے کے ذریعے فیڈریشن کے حق میں ووٹ دیا اور 22 فروری کو صدر شکری القواتلی صدر کے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ مارچ 1958 میں صدر ناصر نے کمیونسٹ پارٹی سمیت شام کی تمام سیاسی جماعتوں کو ختم کر دیا اور روس نواز آرمی افسروں کو برطرف کر دیا۔ اکتوبر 1959 میں ناصر نے اپنے قریبی ساتھی فیلڈ مارشل عبدالحکیم عامر کو شام کا گورنر نامزد کیا۔ 18 مارچ 1960 کو ناصر نے کئی شامیوں کو کابینہ میں شامل کیا تاکہ ملک پر اپنی گرفت مضبوط کی جا سکے۔ متحدہ عرب جمہوریہ کی واحد قانونی جماعت نیشنل یونین کی پہلی کانگریس جولائی میں قاہرہ میں منعقد ہوئی۔ ستمبر میں ناصر نے وزیر داخلہ عبدالحمید سراج کو شام کی علاقائی حکومت کا سربراہ مقرر کیا۔ 5 دسمبر کو سابق صدر ہاشم العطاشی 85 برس کی عمر میں حمص میں انتقال کر گئے۔ مصر و شام کا یہ اتحاد دیر پار ثابت نہ ہو سکا اور ناکامی پر ختم ہوا۔ مصریوں کی بالادستی اور خود پسندی کی وجہ سے شامیوں کو شکایات پیدا ہونے لگی۔ انہوں نے محسوس کر لیا کہ وہ مصریوں کے تابع فرمان بن کر رہ گئے ہیں۔ چنانچہ 28 ستمبر 1961 کو فوج نے جنرل عبدالکریم الخلاوی کی قیادت میں بغاوت کر دی اور دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ بغاوت کے 10 گھنٹے بعد صدر ناصر کے نمائندے اور UAR کی فوجوں کے کمانڈر فیلڈ مارشل عامر اور باقی لیڈروں میں سمجھوتا ہو گیا جو عارضی ثابت ہوا اور بالآخر اگلے روز 29 ستمبر کو شام متحدہ عرب جمہوریہ سے باقاعدہ الگ ہو گیا۔ ناصر نے نئی حکومت سے محاذ آرائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ متحدہ عرب جمہوریہ سے علیحدگی کے فوری بعد شامی پارلیمنٹ کے اسپیکر مامون صدر بنے۔ شام کی اس نئی حکومت نے ملک میں نئے انتخابات کرانے اور اتحاد عرب و عدل اجتماعی کو اپنا نصب العین قرار دے دیا، لیکن سیاسی جماعتوں کی باہمی چپقلش اور فوج کی بار بار مداخلت سے کوئی بھی تعمیری منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا۔ دسمبر 1961 میں ریفرینڈم کے بعد ایک عبوری آئین نافذ ہوا اور نئی حکومت قائم ہوئی۔ ناظم القدسی ملک کے صدر بنے۔ نئی جمہوری حکومت کو بمشکل 1.5 برس گزرا تھا کہ 8 مارچ 1963 کو سوشلسٹ باس پارٹی نے فوج کے ساتھ مل کر حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ میجر جنرل امین الحافظ کی قیادت میں قومی انقلابی کمانڈو کونسل نے اقتدار سنبھال
संभाल लिया। लुआई अल आताशी को इनकलाबी कमांड कौंसिल का चेयरमैन और सरबराह मुमलिकत मुकर्रर किया गया। बास पार्टी इश्तराकियत, सेकुलरिज्म और अरब कौम परस्ती की आलमबरदार थी। जुलाई में इनकलाब के सरबराह जनरल अमीन अल हाफिज ने सदारती कौंसिल के चेयरमैन और सरबराह मुमलिकत का ओहदा संभाला। नई हुकूमत ने इस्लाही इक़दामात के तौर पर पेट्रोल और दीगर मादनियात को कौमी मिल्कियत में ले लिया। 25 अप्रैल 1964 को एक अबूरी आइन नाफिज हुआ। अगस्त 1965 में कौमी इनकलाबी कौंसिल ने मुस्तकिल आइन की तैयारी शुरू की। 23 फरवरी 1966 को शाम में एक और इनकलाब बर्पा हुआ और जनरल अमीन अल हाफिज भी महरूम इख्तिदार कर दिए गए। ये इनकलाब शाम की बास पार्टी के एक ग्रोह ने बर्पा किया था। सदर अमीन, वजीर आजम सलाह बेतार और दूसरे आला हुकाम गिरफ्तार कर लिए गए। बास पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नूरुद्दीन अल आताशी सदर बने। 1964 का आइन मुअत्तल करके मुल्क को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक करार दे दिया गया। इस हुकूमत ने रूस से करीबी ताल्लुकात कायम करके 20 साल दोस्ती का मुआहिदा किया। 6 सितंबर 1966 को कर्नल सलीम हतूम की क़यादत में बास हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश नाकाम हो गई। इसके फौरी बाद शाम और उर्दन के ताल्लुकात कशीदा हो गए। चुनाचे शाम ने मिस्र के साथ करीबी ताल्लुकात कायम किए। 4 नवंबर को दोनों ने इसराइल के खिलाफ दिफाई मुआहिदा किया। जून 1967 की 6 रोजा अरब इसराइल जंग में शाम ने भरपूर हिस्सा लिया, मगर इसे हजीमत उठाना पड़ी और शाम जुलान की पहाड़ियों से महरूम हो गया, जिस पर इसराइल ने कब्जा कर लिया। 8 जून को शाम ने फायरबंदी कबूल कर ली। यहूदियों ने मुल्क के जनूब मगरब में वाक़े जुलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। 1 मई 1969 को बास पार्टी की कांग्रेस में एक अबूरी आइन नाफिज किया गया। नवंबर 1970 में फौजी इनकलाब के जरिए सदर नूरुद्दीन अल आताशी को माजूल कर दिया गया। ये बगावत वजीर दिफा और फजाइया के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल हाफिज उल असद की क़यादत में हुई, जिनका ताल्लुक अक़लियती अलवी फिरके से था। अहमद अल खतीब को अबूरी सदर मुकर्रर किया गया। 22 फरवरी 1971 को अवामी रेफरेंडम में कसरत राय से हाफिज उल असद सदर मुंतखब हो गए। 17 अप्रैल 1971 को सदर असद ने बेंगाजी में शाम, मिस्र और लीबिया की कॉन्फेडरेशन के माहिदे पर दस्तखत किए, जबकि 20 अगस्त को दिमिश्क में कर्नल कज़ाफी और अनवर सादात के साथ कॉन्फेडरेशन के आइन पर दस्तखत हुए। 1972 में सदर असद की ईमा पर एक तरक्की पसंद जमात नेशनल प्रोग्रेसिव फ्रंट का क़याम अमल में आया। ये इंतहाई बाएं बाजू की एक जमात थी जिस पर बास पार्टी के अफराद का गलबा था। 1972 में मुल्क का नया कौमी परचम राइज हुआ। मार्च 1973 में नया मुस्तकिल आइन नाफिज हुआ। पार्लिमानी इंतखाबात हुए जिनमें तरक्की पसंद फ्रंट बड़ी अक्सरियत से जीत गया। अक्टूबर 1973 की अरब इसराइल जंग में शामी फौज ने भरपूर हिस्सा लिया और मिस्र का साथ दिया। शामी फौज ने बोलान का कुछ इलाका इसराइल से आजाद करा लिया। शाम चूंकि फलस्तीनी गोरिलों की इमदाद करता था, इसलिए उर्दन के साथ ताल्लुकात कशीदा हो गए। 1975 में उर्दन और शाम ने तमाम इख्तलाफात खत्म करके नए मुआहिदे किए। इसी साल अमेरिका और बरतानिया के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल हुए। 1976 में मुसलमानों और ईसाइयों की खाना जंगी बंद कराने के लिए 30,000 शामी अफवाज लबनान में दाखिल हो गयी। 1977 में मिस्र इसराइल माहिदे के अमल में शाम ने मिस्र से सफारती ताल्लुकात तोड़ लिए। 8 फरवरी 1978 को इस्तिस्वाब राय के जरिए अवाम ने भारी अक्सरियत से हाफिज उल असद को दूसरी बार 7 साल के लिए सदर मुंतखब कर लिया। 1979 में मुल्क गिर फसादात शुरू हो गए। तमाम बड़े शहरों में अलवी सुन्नी फसादात भड़क उठे। 2 सितंबर 1980 को सदर असद शाम को लीबिया में जम करने पर मुत्तफिक हो गए। उर्दन के साथ जंग की नौबत आ गई, चुनाचे सऊदी अरब ने मुसालहत कराई। अक्टूबर 1981 में शाम और सोवियत यूनियन के माबेन दोस्ती और तावन का 20 साल माहिदा तय पाया। 1982 में शाम ने इराक के साथ अपनी सरहदें बंद कर दी। हमा में इख्वानुल मुस्लिमून ने तहरीक शुरू की जिसे जालिमाना अंदाज में कुचल दिया गया। मार्च 1984 में सदर असद ने अपने भाई रिफत असद को नायब सदर मुकर्रर किया। फरवरी 1985 में सदर असद तीसरी बार 7 साल के लिए सदर मुंतखब हो गए। अगस्त 1990 में कुवैत पर इराकी कब्जे की शाम ने शदीद मुखालफत की और इराक के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए अपनी अफवाज भेजी। फरवरी 1992 में हाफिज उल असद चौथी बार 7 साल के लिए बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। अगस्त 1994 में अवामी असम्बली के इंतखाबात में NFP के तमाम
तमाम 167 अरकान मुंतखब हुए। इसके अलावा 24 खवातीन भी मुंतखब हुई। 13 अक्टूबर 1996 को शाम दूसरी बार अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना। 8 फरवरी 1998 को सदर ने अपने छोटे भाई रिफत को इख्तलाफात की बिना पर नायब सदर के ओहदे से बरतरफ कर दिया। 30 नवंबर को नई पार्लियामेंट के इंतखाबात में हुक्मरान इत्तेहाद बाज़ पार्टी ने कामयाबी हासिल की। NPF के तमाम 167 अरकान मुंतखब हो गए। 10 फरवरी 1999 को अवामी रेफरेंडम में हाफिजुल असद 100% वोट लेकर 5वीं बार 7 साल के लिए सदर मुंतखब हो गए। मार्च 2000 में वजीर आजम महमूद अज़्ज़ुवैबी और इनकी हुकूमत मुस्ताफी हो गई। सदर ने सूबा आलिपो के गवर्नर मोहम्मद मुस्तफा मीरू को वजीर आजम मुकर्रर किया। 21 मई को महमूद अज़्ज़ुवैबी ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इन पर करप्शन के बेशुमार इल्जामात थे। 10 जून 2000 को सदर हाफिजुल असद तकरीबन 30 साल बरसरे इक़्तिदार रह कर दिल का दौरा पड़ने से दिमिश्क में इंतकाल कर गए। नायब सदर अब्दुल हलीम खुद्दाम कायम मकाम सदर बने। 22 जून 2000 को 250 रुकनी पार्लियामेंट ने हाफिजुल असद के साहिबजादे लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर बशारुल असद की बतौर सदर नामजदगी की मंजूरी दे दी। 10 जुलाई को अवामी रेफरेंडम में 97% अवाम ने बिशार के हक में वोट दिया। 17 जुलाई को डॉक्टर बिशार ने मुल्क के 16वें सदर के ओहदे का हलफ उठाया। 26 सितंबर 2000 को शाम ने 600 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। 2 मार्च 2003 को नई पार्लियामेंट के इंतखाबात हुए जिनमें हुकूमत नवाज उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। 10 सितंबर को वजीर आजम मीरू ने अपनी काबीना समेत इस्तीफा दे दिया। सदर असद ने पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद नाजी अल अवतारी को नया वजीर आजम मुकर्रर किया। 6 जनवरी 2004 को सदर बिशारुल असद ने तुर्की का 3 रोजा दौरा शुरू किया। वो 1946 में शाम की आजादी के बाद पहले लीडर थे जिन्होंने तुर्की का दौरा किया। 12 मई 2004 को दुनिया के मौमर तरीन वजीर दिफा जनरल मुस्तफा तलास 32 साल 52 रोज तक खिदमत अंजाम देने के बाद रिटायर हो गए। 72 साल वजीर दिफा और फौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल तलास को 1972 में सदर हाफिजुल असद ने इन ओहदों पर तैनात किया था। इन्हें दुनिया का मौमर तरीन जनरल होने का भी एजाज हासिल हुआ। उन्होंने बास पार्टी में अहम किरदार अदा किया। इनकी जगह जनरल हसन तुर्कमानी नए वजीर दिफा मुकर्रर हुए। अगस्त 2004 में शामी हुकूमत ने मजीद 200 सियासी कैदी रिहा कर दिए। रिहाई पाने वालों में एक कम्युनिस्ट पार्टी लीडर अम्मार शिहा भी शामिल थे। 51 साल अम्मार 30 साल से कैद था जो अरब कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का रुकन था। 13 फरवरी 2005 को हुकूमत ने 20 साल से कैद इख्वानुल मुस्लिमून के तकरीबन 55 कारकुनों को रिहा कर दिया। 24 अप्रैल 2005 को लबनान में 29 साल बाद शाम की फौज की मौजूदगी मुकम्मल तौर पर इख्तिताम पजीर हो गई। ये फौज 1976 से लबनान में मौजूद थी। 7 जून को तवील अरसे से बरसरे इख्तिदार नायब सदर अब्दुल हलीम खुद्दाम अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। इनका इस्तीफा लबनान से शामी फौजों के इनखला के बाद पेश हुआ। 11 फरवरी 2006 को सदर बिशारुल असद ने 1984 से चले आ रहे वजीर खारजा फारूक शरा को मुल्क का नायब सदर मुकर्रर कर दिया। उन्होंने अब्दुल हलीम खुद्दाम की जगह ली जिन्हें गद्दार करार दिया जा चुका था। 23 मार्च को मुल्क में पहली खातून नायब सदर मिसेस नजाह अल अत्तार ने अपने ओहदे का हलफ उठाया। 68 साल नजाह 1976 से 2000 तक वजीर सकाफत रही। 27 मई 2007 को बिशारुल असद सदारती रेफरेंडम में 97% वोट हासिल करके दूसरी 7 साल मुद्दत के लिए सदर जमहूरिया मुंतखब हो गए। वो बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए। शामी पार्लियामेंट पहले ही असद को दूसरी मुद्दत के लिए सदर जमहूरिया मुंतखब कर चुकी थी। इस रेफरेंडम में 1 करोड़ 20 लाख रजिस्टर्ड वोटरों ने अपनी राय का इजहार किया। फरवरी 2009 में शामी हुकूमत ने तारीख में पहली मरतबा दिमिश्क में लबनान के सफीर की तैनाती की मंजूरी दी और माइकल अलखोरी को सफीर मुकर्रर किया गया। 17 दिसंबर 2009 को साबिक सदर अमीन हफीज आलिपो में इंतकाल कर गए। अजीज तलबा कराम, इस तरह हमारे सबक का ये पहला पॉइंट मुकम्मल हुआ जिसके अंदर हमने मुल्क शाम के सिलसिले हालात और वाक़यात का जायजा लिया। अब चलते हैं आज के सबक के दूसरे पॉइंट की जानिब जिसके अंदर हम मुल्क शाम के तर्ज हुकूमत पर बात करेंगे। अरब जमहूरिया शाम का मौजूदा और मुस्तकिल आइन 12 मार्च 1973 को कौमी रेफरेंडम में 98% वोटरों की मंजूरी के बाद नाफिज हुआ। इसके तहत शाम एक आजाद और खुद मुख्तार सोशलिस्ट पॉपुलर डेमोक्रेटिक और इश्तराकी जमहूरिया है। मुल्क का सरकारी नाम अल जमहूरिया अल अरबिया अस सूरिया है। सदर रियासत का सरबराह मुमलिकत
चीफ एग्जीक्यूटिव, इंतजामी व अदालती इख्तियारात का मालिक, मुसल्लह अफवाज का सुप्रीम कमांडर और बास पार्टी का सेक्रेटरी जनरल है। सदर बराह रास्त अवाम के वोटों से 5 साल के लिए मुंतखब होता है। सदर की मावनत 3 नायब सदर करते हैं। इनको और सूबों के गवर्नर का तकर्रुर सदर करता है। हुकूमत का सरबरा वजीर आजम है जिसे सदर नामजद करता है। मुल्क शाम के अंदर कानून साजी का इख्तियार एक ऐवानी पार्लियामेंट जिसे पीपल्स काउंसिल के नाम से जाना जाता है इसको हासिल है, जिसके 250 अरकान 4 साल के लिए मुंतखब होते हैं। मुल्क की बड़ी कुव्वत बास पार्टी है। मुल्क शाम की बड़ी सियासी जमातों के बारे में जानते हैं। बास अरब सोशलिस्ट पार्टी इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। दूसरे नंबर पर सीरियन अरब सोशलिस्ट यूनियन पार्टी, नेशनल प्रोग्रेसिव पार्टी, अरब सोशलिस्ट पार्टी, शामी कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट यूनियनिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, इस्लामिक मूवमेंट फॉर चेंज, ग्रुपिंग फॉर डेमोक्रेसी एंड यूनिटी और सोशल पीस मूवमेंट पार्टी शामिल हैं। तो ये इस मुल्क की बड़ी सियासी जमातें थी जिसके बारे में हमने जाना। इस तरह हमारे आज के सबक का ये दूसरा पॉइंट भी मुकम्मल होता है। आज के सबक का खुलासा जान लेते हैं। आज का सबक हमारा 2 पॉइंट्स पर मुश्तमिल था। पहले पॉइंट के अंदर हमने मुल्क शाम के सिलसिले हालात व वाक़यात का जायजा लिया और दूसरे पॉइंट के अंदर हमने इस मुल्क के तर्ज हुकूमत पर बात की। तो इस खुलासे के साथ ही हमारा आज का सबक मुकम्मल हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।